Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. I am Shivam Bajpayee and today we are going to discuss about exponents in details. So let's begin, and if you have not subscribed Digital Kaksha, do like and subscribe Digital Kaksha. Thank you. There is exponents. Okay, so when we represent number in powers, okay, when we multiply same number again and again, like here you can see, recall, we may write 5 into 5 into 5 into 5 as 5 to the power 5 raised to the power 4. So here the 5 is the base and 4 is the exponent or index. Okay, this power or 4, which is called exponent or index. Okay, in this minus 6 to the power 3, minus 6 is base, and 3 is exponent or index. Exponent is 3. Okay, because minus 6 is multiplied 3 times, and this kind of representation means representing any number in terms of power. So that is called exponential form or power notation. Okay, so when you represent any number in terms of power, so that is called exponential form, okay, of that particular number. So in same way we have rational numbers also. जैसे normal numbers को power में लिखते हैं, तो हमारे पास rational number भी हो सकता है. We can write a upon b into a upon b into a upon b. If we have this kind of rational number is repeating or multiplying again and again, so you can write it in this way ना, a upon b raised to the power 3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कराया मैंने a upon b को, तो यहाँ पर a upon b की पावर में 3 लिख सकता हूँ. So here a upon b, this whole is base, whole a upon b is base, and this 3 is exponent. Okay, I hope it is clear. Now let us discuss about some more properties related to exponent. So here you can see examples are given na. Okay, so one thing you can keep in mind, this is your first formula. Like suppose you have a upon b whole power na, the whole power of a upon b is 4 given, so you can also write a to the power 4 and b to the power 4 separately. Okay, you can write like this. So this is your first formula, you have to keep in mind. Okay, and you have to write these formulas in a page, okay, at one place. So note it down. Whenever you have a upon b to the whole power n, so you can write it like that, this a upon a to the power n and b raised to the power n, okay, for every positive integer. So n is a positive integer basically. Now let's see example number 1. Here evaluation is given ना, evaluate करना है आपको, यानी value निकालनी है. So here the exponential form is given, like 3 by 4 raised to the power 2, this is given, and you have to find the value or final value of this. So what you will do, you will simply multiply 3 by 4 2 times. So when you multiply 3 to 3 you will get 9, and when you multiply 4 to 4 you will get 16. So this will be the answer. In same way, when you multiply minus 2 upon 3 to the power 3 is given, raised to the power 3. So you have to solve it, you will multiply it 3 times. Okay, so when you multiply minus 2 3 times, so you will get minus 8, and in denominator you will get 27. So your answer will be minus 8 upon 27. Why we are getting minus 8? I have already explained कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स जब ऑड होते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस आता है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस. तो फाइनल आंसर क्या आता है, नेगेटिव. जब भी किसी नेगेटिव रैशनल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, अगर ऑड है, नंबर ऑफ ऑड हैं उनके टर्म्स, सो वी विल गेट नेगेटिव आंसर, नेगेटिव वैल्यू. और अगर इवन होंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 4 बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं उनका, तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा. So in this way you will solve. In case of minus 4 by 5, also you will do that same thing. You will multiply it 4 times. Minus 4 by 5 into minus 4 by 5 into here here power is 5, so you will multiply it 5 times na. 3 minus 4 by 5 and minus 4 by 5. Okay, so when you will multiply,
So answer will be negative because you know the power is odd. Okay, so multiply 4 4 the 16, 16 4 the 64, 64 4 the 256, and then when you multiply 256 to 4, then you will get 1024. So 1024 minus 1024 will be the answer. Here 5 5 are 25, 5 are 125, 5 are 625, 5 are 3125. So minus 1024, and in denominator you will get 3125. So this will be the answer. Here you can see answers. Okay, now they have given you example number 2. You have to represent them in exponential form, then you have to break them or factorize them. Like 81 and 256 is given, so 81 you have to factorize 81 first. You will divide it by 3. Okay, so 3 2 are 6, 3 9, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, and 3 1 are 3. That means you are getting from 81 you are getting 3 to the power 4. And same way you will represent this 256. Okay, so when you divide it you will get how many times? What will you get? 2 to the power what? 4 times. 256 will divide it. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 4s are 2, 32, 2 16, 2 8s are, okay, again 8 when you solve it, 2 4s are 2, 2s are, and last 2 1s are. So how many powers are you getting? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. This means we can write it. यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 to the power 8 अगर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 to the power 4. अब आपको पावर सेम करनी है. कैसे करोगे? क्योंकि सेम पावर लाएंगे तभी तो हम होल अपॉन लिख सकते हैं. तो इसको 2 to the power 8 को हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 अलग कर लो और उसकी पावर 4 लिख सकते हैं. यानी कि हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको. ठीक है. सो वी विल राइट 3 to the power 4 and 4 to the power 4. क्योंकि 2 की पावर में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पावर्स बढ़ रही है ना. हमें तो होल अपॉन में लिखना है. होल अपॉन में कैसे लिखोगे? जब पावर सेम होगी. तो 3/4 होल पावर 4. दिस विल बी द आंसर. ओके, अब जैसे 32 है तो 32 2 to the power 4 होगा आई थिंक. ओके, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 5 आएगा. 2 to the power 5. सो माइनस 2 to the power 5 आप लिखोगे 32 को, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? आई थिंक 3 to the power 5. सो नीचे हो जाएगा 3 to the power 5. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, -2/3 to the whole power 5. Okay, so this is the way you can write these questions. Here solutions are given. Now what is given here? Reciprocal. What is reciprocal of a rational number? So whenever you have to reciprocate any rational number, that means you are changing numerator to denominator. Okay, exchange between numerator and denominator. So suppose it is given a upon b. So the reciprocal of a upon b will be b upon a, because I told you what is reciprocal or multiplicative inverse, so that I can multiply in that given rational number or I will get 1. So it is that value. a upon b में अगर हम b upon a का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि ये b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा. ओके, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ पर्टिकुलर रैशनल नंबर. अब ये रेसिप्रोकल को पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं. कि अगर आपने मान लीजिए a अपॉन b है, a अपॉन b का रेसिप्रोकल है आपका b अपॉन a, तो इसको आपको a अपॉन b की पावर के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो a अपॉन b की होल पावर -1. क्या लिख सकते हैं? a अपॉन b टू दी रेज टू दी होल पावर -1. ओके, तो यानी कि जब किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होगी दैट मींस उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है. जैसे अगर मैंने लिखा 4 टू द पावर -1, दैट मींस आई हैव रिटन 1/4. ओके, सपोज आई हैव रिटन 5 टू द पावर -3, दैट मींस आई हैव रिटन 1/5 टू द पावर -3, व्हिच इज 1/125. क्लियर? सो अगर मैंने बोला a अपॉन b का रेसिप्रोकल आपने लिखा b अपॉन a भी लिख सकते हैं, और a अपॉन b टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं. ओके, बेस सेम रखा, बस पावर माइनस कर दी, तो पावर को नेगेटिव कर दिया. इसका मतलब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया. ओके,
क्योंकि अगर आप लिखोगे a अपॉन b टू दी पावर -1, सो यू कैन राइट इट a टू दी पावर -1 एंड b टू दी पावर -1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो a की पावर -1 जो है ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन a। ओके, तो ये आपका 1 अपॉन a बन जाएगा, और अपॉन में b की पावर -1 है, मीन्स 1 अपॉन b बनेगा। ये b चला जाता है ऊपर, सो इट हैज बिकम b अपॉन a, इसलिए ये बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। ओके, सो दिस इज रेसिप्रोकल। here it is given, you can see a upon b to the power m whole power m is given b upon a to the whole power m, और यहाँ पर लिख सकते हो आप a अपॉन b, अगर बेस सेम रखना है a अपॉन b की होल पावर -m। ओके, या तो डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया या फिर पावर को नेगेटिव कर दो। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना है इसका, सो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 की पावर -6, या इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 2 की पावर 6 प्लस में। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर 6, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, -6 जब लिखोगे तब बेस नहीं चेंज करोगे, ये ध्यान रखना। अगर -6 के फॉर्म में लिख रहे हो तो 5 अपॉन 2 की पावर -6 लिखोगे, फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो बाद में वही बन जाएगा ना 5 अपॉन 2 की पावर +6 जब पॉजिटिव बनाओ। और बाकी इसको सॉल्व वैसे ही कर लेंगे, जब रेसिप्रोकल कर लोगे उसके बाद एक्सपैंड तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते हैं। यहाँ पे देखो सेम वे में दिया हुआ है इन्होंने, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। ओके, सो द सेम थिंग इज गिवन हियर सम फार्मूलाज आर गिवन, नाउ वी विल लुक एट देम। जो फार्मूला है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले एक्सपोनेंट में, तो अब यहाँ पर फार्मूले यूज होंगे। सबसे पहला फार्मूला है कि अगर हम सेम बेस है, बेस सेम है हमारा a अपॉन b की पावर m, इनटू में दिया हुआ है a अपॉन b की पावर n, एंड पावर्स आर डिफरेंट। सो इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस इज सेम एंड powers are different, so you will multiply them and you will add the powers. Okay, means you will take the base, common base as it is, and you will add the powers को आप add कर लोगे। Okay, for example अगर दिया हुआ है 4 upon 3 to the power 5 into 4 upon 3 to the power 3. Okay, so you will write 4 upon 3 to the whole power 5 plus 3. So it will become 4 upon 3 to the power 8. Okay, अब सेम जैसा मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हेन बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, सो यू विल subtract them. Okay, so in division powers will, example 2 upon 3 to the power 5 divided by 2 upon 3 to the power 3, so you will write it 2 upon 3 to the whole power 5 minus 3, and you will get 2 upon 3 to the power 2. So you can solve it also, you will get 4 by 9 when you solve it. And here one condition is also given, m is greater than n, means जो पहली वाली पावर है ये बाद वाले से बड़ी है, अदरवाइज आपकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर n बड़ा हो जाएगा m से तो वैल्यू क्या आएगी, m माइनस n की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर मैं 3 पहले रख दूं -5 कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी, -2, है ना। तो इसलिए ये कंडीशन भी दी है कि m जो है वो आगे वाला जो पावर है वो बड़ी होनी चाहिए बाद वाले से, वरना जो नेगेटिव आएगी वैल्यू उसको सॉल्व करने के लिए फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 अपॉन 3 की पावर 3 लिख दिया, इसको डिवाइड करा रहा हूँ मैं 2 अपॉन 3 की पावर 5 से, तो सॉल्व इसको भी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 अपॉन 3 की पावर 3 माइनस 5 अगर हम लिखेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा है। सो व्हाट यू विल गेट 2 अपॉन 3 टू दी होल पावर -2, एंड इट विल बिकम, अगर इसको प्लस बनाना है पावर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी 3 अपॉन 2 की पावर +2, या इसको सॉल्व करोगे तो 9 अपॉन 4 आएगा। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या दिया हुआ है, m इज ग्रेटर देन n। नाउ you have to write these formulas. Okay, third number is then when m is less than n,
ओके, इन प्रीवियस केस वी डिस्कस्ड व्हेन m इज ग्रेटर देन n। अब m जो लेस होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर सेम वे में कि रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पर इन्होंने रेसिप्रोकल किया हुआ एक तरीके से। तो आप नेगेटिव में आंसर ले आओ, जैसे सॉल्व किया आपने पूरी पावर को सॉल्व करो, नेगेटिव में आएगी आपकी पावर, उसको बाद में रेसिप्रोकल कर दो उसका। ओके, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने पहले तो डिवाइड कराया पावर को a अपॉन b, अब इन्होंने नीचे लिख दिया है इसको। नीचे लिखने का कोई यूज नहीं है वैसे तो, ऊपर भी आप अगर लिख सकते हो तो माइनस में लिखोगे ना। अगर m माइनस n कर रहा हूँ और n की वैल्यू बड़ी है तो पूरा मेरा जो वैल्यू आएगी जो a अपॉन b की होल पावर m माइनस n की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, नेगेटिव। तो जब आएगा मेरे पास मान लो आएगा a अपॉन b की होल पावर माइनस p आया, जो भी फाइनल वैल्यू आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b अपॉन a की होल पावर प्लस p। ओके, सेम थिंग इज गिवन हियर, इन्होंने 1 अपॉन n माइनस n लिखा हुआ है। ओके, then you have formula when a upon b to the power m is given and whole power, उसकी भी whole power n दी हो, तो यहाँ पर हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a upon b की whole power m into n कर देते हैं। जब एक पावर की पावर लगी हो, पावर की भी पावर है यहाँ पर, तो हम पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, so you will write it 2 की पावर 2 into 3 and you will get 2 to the power 6। ये नॉर्मल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में मान लो मैंने लिखा 2 अपॉन 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 5, so the value will be 2 upon 3 to the whole power 2 into 5, so the answer you will get 2 upon 3 to the power 10। so this is the formula, this you have to keep in mind, and this I already explained कि जब किसी भी नंबर की पावर, जैसे -4 की पावर -1 है ना, 4 की पावर -1 दिया हुआ है, 4 की पावर -1 को आप 1/4 लिख सकते हो। तो यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर नेगेटिव है, यानी -1 है या -n है, तो आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए b अपॉन a की पावर +n लिख सकते हो। यू कैन रेसिप्रोकेट इट। ओके, सो पॉजिटिव पावर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे, तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी। Okay, now next one is a upon b to the whole power 0, the value will be 1। okay, किसी भी रैशनल नंबर हो या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, that means उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर 1 लिखा है तो 1 को आप a अपॉन b की होल पावर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लिखा है 1, तो 1 की जगह पे मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पर मैं कोई भी नंबर यूज कर सकता हूँ जो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर मुझे यूज करना है तो मैं 25 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 1 की जगह पर 15 की पावर 0 लिख सकता हूँ। I can write 2 upon 3 to the power 0, whatever I can write। okay, I am free to write in place of 1, but I will use according to the question। और अगर लिखा हुआ है, मान लो नंबर ही दिया हुआ है कि आपको 5 upon 3 की पावर या -5 upon 3 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू आप बिना सोचे 1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे अभी हमने -1 वाला केस देखा कि पावर -1n है, तो हमने इसको b अपॉन a की पावर क्या लिख दिया, +n। सेम वे अगर पावर -1 हो गई a अपॉन b की पावर -1, तो आप सीधे सीधे इसको b अपॉन a लिख दोगे, क्योंकि +1 लिखो या ना लिखो दैट विल नॉट मैटर ना, कि अगर इसकी पावर होल 1 लिखोगे +1, तो +1 तो मतलब लिखते ही नहीं ना हम जनरली, तो इसको हम b अपॉन a सीधे लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए मैंने बताया कि ये केस कौन सा है, रेसिप्रोकल वाला, ये रेसिप्रोकल वाला केस है। ओके, सो आई होप ऑल formulas are clear to you. Any doubt? That's it for today. I hope you like this video. We'll discuss about the questions related to exponent and exercise in next video. Till then, have a nice day. Goodbye. Take care.